السلام علیکم ففتھ کلاس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ سب بچے اپنی اردو کی کتاب کھولیں گے۔ اردو کی کتاب کا صفحہ نمبر 28 آپ نے کھولنا ہے۔ آج ہم نے اگلا لیسن سٹارٹ کرنا ہے ففتھ کلاس، اور وہ ہے ہمارا دیکھو ناچ رہا ہے مور۔ یہ نظم ہے، ٹھیک ہے، اور جو نظم ہے اس کو لکھنے والے جو شاعر ہیں وہ ہیں محمد حفیظ جالندھری۔ آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ نظم لکھنے والے کو ہم کیا کہتے ہیں؟ شاعر کہتے ہیں۔ تو یہ جو نظم لکھی ہے اس کے شاعر کا نام ہے محمد حفیظ جالندھری۔ دیکھو ناچ، اور نظم کا نام ہے دیکھو ناچ رہا ہے مور۔ یہ دیکھیے مور کی تصویر بھی بنی ہوئی ہے، اور اس نظم میں شاعر یہی بتا رہے ہیں کہ مور کے ناچ کے بارے میں بیان کر رہے ہیں کہ جب بھی ساون کا جو ہے موسم آتا ہے تو ہر طرف جو ہے سبزہ ہی سبزہ ہو جاتا ہے، ہر طرف ہریالی ہوتی ہے، کوئل کی آواز ادھر ادھر گونج رہی ہوتی ہے، یعنی کوئل کوکتی ہے، اور جب کالے بادل آتے ہیں تو مور اپنے پر کھول کر ناچتا ہے اور بہت خوبصورت لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ چلیں اب یہ جو نظم ہے اس کی ہم ریڈنگ کریں گے۔ سب سے پہلے اسی طرح ریڈنگ کرنی ہے جس طرح آپ کلاس میں میرے ساتھ کیا کرتے تھے۔ پہلے میں ریڈنگ کروں گی، میرے ساتھ ساتھ آپ بھی ریڈنگ کریں گے، ٹھیک ہے۔ ہاں جی ففتھ کلاس، سب سے پہلے اس کے مشکل الفاظ دیکھیے۔ خاص الفاظ میں ہے رت، ہریالی، گہنے، پونپل، دھرتی، جھونکے، تنبور، گلزار، چنور، ٹھیک ہے۔ ہاں جی دیکھیے، ساون بھادو کی رت آئی، دھرتی پر ہریالی چھائی، باغوں نے خوش ہو کر پہنے پھولوں اور پھلوں کے گہنے، کونپل پھوٹی کلیاں مہکیں، کوئل کوکی چڑیاں چہکیں، سرد ہوا کے جھونکے آئے، پیڑوں نے تنبور بجائے، چھائی کالی گھٹا گھنگھور، دیکھو ناچ رہا ہے مور، واہ چنور کیا خوب بنایا، گلشن میں گلزار کھلایا، اس کے پر ہیں کیا چمکیلے، پھول ہوں جیسے رنگ رنگیلے، آم کے نیچے مست کھڑا ہے، ایک ایک پر میں باغ لگا ہے، دیکھنا ہم کو دیکھ نہ پائے، ناچنا چھوڑ کے بھاگ نہ جائے، بھائی اب نہ مچاؤ شور، دیکھو ناچ رہا ہے مور، ٹھیک ہے جی ففتھ کلاس۔ یہ نظم تھی دیکھو ناچ رہا ہے مور۔ اب میں اس کے مشکل الفاظ دیکھیں گے جو میں نے اپنی نوٹ بک پہ ڈائری پہ لکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ دیکھیے، اور یہ ہمارا لیکچر نمبر جو ہے ففتھ کلاس 16 ہے، ٹھیک ہے۔ نظم کا نام ہے دیکھو ناچ رہا ہے مور۔ مشکل الفاظ دیکھیے، پہلا لفظ ہے ہمارا رت، ہریالی، گہنے، کونپل، دھرتی، جھونکے، تنبور، گلزار، چنور، ناچنا، رنگیلے، ٹھیک ہے ففتھ کلاس۔ یہ مشکل الفاظ تھے، اور آپ کو پتہ ہے آپ نے اپنے مشکل الفاظ جو ہیں ان کی اچھی طریقے سے املا کرنی ہے۔ ایک ایک لفظ کو آپ نے 3 دفعہ لکھنا ہے۔ اب آگے الفاظ معنی دیکھیے۔ ہریالی، ہریالی کے کیا معنی ہوتے ہیں ففتھ کلاس؟ سبزہ، کیا ہوتے ہیں؟ سبزہ۔ گھنگور، گہرا بادل، اس کے بعد ہے کونپل، شگوفہ، کلی یا کلی، ٹھیک ہے۔ تنبور، یہ ایک ساز کا نام ہے۔ دھرتی، دھرتی کے معنی ہے زمین۔ ساون، بارش کا موسم۔ کوکو، کوئل کی آواز۔ چہکنا، چڑیوں کی آواز۔ گھٹا، بادل۔ گہنے، زیورات، گہنے جو ہے یہ جمع ہے گہنا کی، گہنے، ٹھیک ہے۔ گلزار، چمن یا باغ۔ کلیاں، ان کھلے پھول۔ رت، موسم۔ چمکیلا، چمک والا۔ مہک، خوشبو۔ چنور، پروں یا بالوں کا گچھا۔ جی یہ ففتھ کلاس، یہ سارے الفاظ معنی تھے اس کے جو ہم نے کیے ہیں۔ اب ساتھ ہی ہم اس نظم کی تشریح بھی کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ دیکھیے، دیکھو ناچ رہا ہے مور، پہلا بند ہے ہمارا، یہ بند کی صورت میں ہوگی اس کی تشریح، ٹھیک ہے۔ ساون بھادو کی رت آئی، دھرتی پہ ہریالی چھائی، باغوں نے خوش ہو کر پہنے پھولوں اور پھلوں کے
गहने। ठीक है फिफ्थ क्लास। जी तशरीह देखिए इसकी कि नज़म जो है ये जो हमने पढ़ी है अभी, देखो नाच रहा है मोर में, हफीज़ जालंधरी जो है सावन भादो के मौसम के मुतालिक बता रहे हैं कि जब सावन का मौसम आता है तो बारिश बरसने से ज़मीन में हर तरफ सब्ज़ा ही सब्ज़ा नज़र आता है। बागों में हर तरफ फल दिखाई देते हैं और बागात फलों से भर जाते हैं और चमन में रंग बरंगे फूल नज़र आते हैं जो बागों की खूबसूरती में मज़ीद इजाफ़ा करते हैं। ठीक है, अगला बंद देखिए। कोंपल फूटी, कलियां महकी, कोयल कूकी, चिड़ियां चहकी, सर्द हवा के झोंके आए, पेड़ों ने तंबूर बजाए। हाँ जी देखिए दूसरा बंद जो है, शायद इस बंद में बहुत खूबसूरत अंदाज में सावन के मौसम का जिक्र कर रहा है कि जब सावन भादो का मौसम आता है तो नई कोंपलें फूटती हैं, कलियां महकती हैं और फूल खिलते हैं। और तो कोयल इन फूलों पर आकर बैठती है और अपनी प्यारी आवाज़ में कूकती है और चिड़ियां चहकती हैं और खुश होती हैं। ठंडी हवा चलने लगती है। ठीक है, हवा के चलने से दरख्तों पर मौजूद शाखें और पत्ते हिलते हैं तो उनमें से तंबूर के साज की आवाज़ आती है जो सुनने वाले को बहुत अच्छा तासुर देती है। अगला बंद देखिए। छाई काली घटा घंघोर, देखो नाच रहा है मोर, वाह चनोर क्या खूब बनाया, गुलशन में गुलजार खिलाया। इस बंद में शायर कहते हैं कि सावन के जो मौसम है उसमें काले बादल आते हैं तो मोर भी खुशी का इजहार करता है और अपने पर फैला देता है। उसके पर बहुत खूबसूरत होते हैं कि बाग की खूबसूरती में मज़ीद इजाफ़ा हो जाता है। यानी बागों में पहले ही खूबसूरत रंग बरंगे फूल खिले होते हैं, ऊपर से मोर अपने पर फैला देता है तो बागों का मंज़र और भी खूबसूरत दिखाई देता है। जी अगला बंद देखिए। इसके पर हैं क्या चमकीले, फूल हो जैसे रंग रंगीले, आम के नीचे मस्त खड़ा है, एक एक पर में बाग लगा है। शायर कहते हैं कि मोर के पर इतने चमकदार और ख़ूबसूरत होते हैं कि रंग बरंगे फूल खिले हुए हों जैसे। और जब मोर आम के दरख्त के नीचे अपने परों को खोल कर खड़ा होता है तो ऐसा लगता है कि उसके एक एक पर में जो है वो बाग लगा हो। यानी उसके परों की खूबसूरती जो है वो हम अपने अल्फाज में बयान नहीं कर सकते। आखिरी बंद देखिए। देखना हमको देख ना पाए, नाच ना छोड़ के भाग ना जाए, भाई अब ना मचाओ शोर, देखो नाच रहा है मोर। आखिरी बंद में शायर कहते हैं कि भाई तुम शोर ना मचाओ और मोर का नाच छुप छुप कर देखो, ऐसा ना हो कि वो तुम्हें देख ले और डर जाए और नाचना छोड़कर भाग जाए। इसलिए बस तुम खामोशी से छुप कर उसका नाच देखो कि मोर नाचते हुए कितना प्यारा लग रहा है। ठीक है, ये इस नज़म की तशरीह थी, देखो नाच रहा है मोर की। ठीक है फिफ्थ क्लास, उम्मीद है आपको तशरीह जो है वो इसकी समझ आ गई होगी। ठीक है, आगे देखिए इसकी एक्सरसाइज भी हम कर लेते हैं, छोटी सी एक्सरसाइज है इसकी। हाँ जी देखिए, पहले दरअसल सवालों के मुख्तसर जवाबात देने हैं। पहला सवाल है कि इस नज़म के शायर का पूरा नाम लिखिए। आपको मैंने बताया इस नज़म के शायर का नाम मोहम्मद हफीज़ जालंधरी है। सावन भादो की रुत किसे कहते हैं? बारिशों के मौसम को सावन भादो की रुत कहते हैं। फूलों और फलों के गहने किसने पहन रखे हैं? बागों ने फूलों और फलों के गहने पहन रखे हैं। आम के दरख्त के नीचे कौन मस्त खड़ा है? आम के दरख्त के नीचे मोर मस्त खड़ा है। शायर आखिरी शेर में किससे मुखातिब है? शायर आखिरी शेर में अपने भाई बंदों यानी लोगों से मुखातिब है। मिसरे मुकम्मल कीजिए। धरती पर डैश छाई, धरती पर हरियाली छाई, कोयल कूकी, चिड़िया डैश, चिड़िया चहकी, देखो नाच रहा है डैश। क्या आएगा फिफ्थ क्लास? देखो नाच रहा है मोर। गुलशन में डैश खिलाया, गुलशन में गुलजार खिलाया,
देखना हमको डैश ना पाए, देखना हमको देख ना पाए। आगे वाहिद जमा दिए हुए, कहीं वाहिद लिखे हुए तो आपने उनके जमा बनाने, कहीं जमा दिए हुए हैं तो आपने उनके वाहिद बनाने। ठीक है। पहला है रुत। रुत की जमा क्या होती है? रुतों। कौंपल, कौंपलों। पेड़, पेड़ों। गहने, गहना। कलियां, कली। ये जमा है, इनके वाहिद बना रहे हैं हम। चिड़िया, चिड़िया। ठीक है। 10 सवाल है हमारा, बस दुरुस्त जवाब पर आपने सही का निशान लगाना है। पहला है बाग में नाचा, आपको पता है चकोर या मोर, तो आपको पता है बच्चों मोर नाचा, तो आप मोर को टिक करेंगे। ठीक है। सावन भादो की रुत आई, रुत है बरसात या बहार, आपको पता है सावन भादो की रुत क्या है? बरसात। कोयल करती है, बच्चों क्या करती है? चूं चूं तो नहीं करती ना, कोयल क्या करती है बच्चों? कोयल कूकू करती है, तो कोयल कूकू को टिक करेंगे। फूलों और फलों के गहने पहने, जी किसने पहने? सहराओं ने या बाघों ने? जी बाघों ने। मोर के पर होते हैं बेरंग या रंग बरंगे? रंग बरंगे। ठीक है। आगे हैं अल्फाज मुतरादिफ। ठीक है। जिन्हें हम मायनी कहते हैं, जो एक दूसरे के हम मायनी होते हैं। पहला है रुत। रुत का क्या है? मौसम। पेड़ का क्या होगा? 5th क्लास। दरख्त। काली, स्याह, हरियाली, सब्जा, गुलशन, बाग, खूब, बहुत अच्छा। ठीक है। आगे अल्फाज मायनी है। जी देखिए 5th क्लास। गहने। गहने के मायने क्या होते हैं? जेवरात, चनूर। ठीक है। तंबूर आपको पता है, मैंने पहले बताया, एक साज का नाम। और चनूर मोरछल, परों या बालों का गुच्छा जिससे मक्खियाँ उड़ाते हैं। गुलजार। गुलजार का बच्चों आपको पता है चमन या बाग। रंग रंगीले मतलब रंगों वाले, मुख्तलिफ रंगों वाले। ठीक है। आखिरी सवाल है हमारा कि देखो नाच रहा है मोर, ये मिसरा है, ज़माना माजी हाल और मुस्तकबिल में से किस ज़माने की निशानदेही कर रहा है? जी 5th क्लास बताइए। देखें, आपको फेल की एग्ज़ाम करवाई हुई है ना, ज़माने के लिहाज से। माजी का भी बच्चों आपको पता है, माजी होता है गुज़रा हुआ ज़माना, हाल होता है हमारा मौजूदा ज़माना, मुस्तकबिल होता है हमारा आने वाला ज़माना। अब आपने बताना है देखो नाच रहा है मोर, ये कौन सा ज़माना है? जी 5th क्लास। ये मिसरा जो है ये ज़माना हाल की निशानदेही कर रहा है, यानी ये काम जो है वो हो रहा है मौजूदा ज़माने में। तो क्या है ये मिसरा जो है ये ज़माना हाल की निशानदेही कर रहा है, तो ये मिसरा ज़माना हाल का है। ठीक है। अच्छा जी 5th क्लास हमारी ये मशक भी मुकम्मल हो गई है। अब आप लोग अपना होमवर्क सुन लीजिए। होमवर्क में आप लोगों ने करना है 5th क्लास, जो इस नज़म का आखिरी बंद है ना, देखना हमको देख ना पाए, नाचना छोड़ के भाग ना जाए, भाई अपना मचाओ शोर, देखो नाच रहा है मोर। आखिरी बंद की आपने तशरीह होमवर्क में करनी है अपनी वर्कशीट पे, और साथ में ही आपने इस नज़म के अल्फाज मायनी होमवर्क में करने हैं। ठीक है। देखो नाच रहा है मोर, इसके अल्फाज मायनी जो मैंने अभी आपको डायरी पे लिखवाए हैं, ये सारे अल्फाज मायनी और आखिरी बंद की तशरीह, ये आपने होमवर्क में करनी है। और आपने अपना होमवर्क जो है सैटरडे को स्कूल में सबमिट करवाना है, 11 बजे से लेकर 1 बजे तक। ठीक है। अगले लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।